Hello class, welcome back. So today we will start exercise 2D. Now exercise 2D is based on HCF. Now what do you mean by HCF? HCF means highest common factor. Highest common factor. HCF stands for highest common factor. Clear? Now अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ that is 4 and 6. Now what is the HCF of 4 and 6? Now सबसे पहले अगर मैं 4 के फैक्टर्स देखूं, now what are the factors of 4? That is 1, 2 and 4. Clear? And now what are the factors of 6? That is 1, 2, 3 and 6. Clear? अब दोनों में देखिए, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? That is 2. And 2 is the highest common factor. So HCF of 4 and 6 is 2. Easy है, highest common factor. This is just the basic. Now second is methods to find HCF. Methods to find HCF. First method is by prime factorization. By prime factorization, and second method is by long division method. You can find HCF by two methods. First method is by prime factorization and second method is by long division method. Now see exercise 2D question number first. Question number first is find the HCF of the following numbers in each of the following case using prime factorization method. Question number first part आपको क्या given है? That is 84 and 98. You have to find the HCF by using prime factorization. ये देखिए, first of all do the prime factors of 84. 84 is divisible by 2, that is 42. Again 42 is divisible by 2. 21. Now 21 is divisible by 3. Clear? Again 7 is divisible by 7. So these are the prime factors of 84. Now what are the prime factors of 98? 98 is again divisible by 2, that is 49. Now 49 is divisible by 7. Clear? Again 7 ones are 7. Now what are the prime factors of 84? That is 2 into 2 into 3 into 7. And what are the prime factors of 98? That is 2 into 7 into 7. Now prime factorization method से आप HCF कैसे निकालोगे? अब देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 is common in both and 7 is again common in both. So HCF of 84 and 98 will be 2 into 7, that is 14. So this is the first way to find HCF by prime factorization. You have to just see the common factors. In 84 and 98 there are two common factor, that is 2 and 7. So HCF आपके पास क्या आएगा? 2 into 7, that is 14. Easy है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड is find HCF of 170 and 238 by prime factorization. Now what are the prime factors of 170? 170 is divisible by 2, that is 85. Now 85 is divisible by 5. Now 17 is divisible by 17 only because 17 is a prime number. Now what are the prime factors of 238? Again 238 is divisible by 2, that is 119. Clear?
Now 119 is divisible by 7. You all know the divisibility rule of 7. So this number is divisible by 7. 7 ones are 7, 49. 7 sevens are 49. Now 17 is divisible by 17. So prime factors of 170 is 2 into 5 into 17. And prime factors of 238 is 2 into 7 into 17. Now what is the HCF of 170 and 238? Now 2 is common in both and 17 is also common in both. So HCF आपके पास क्या आएगा? That is 2 into 17, that is 34 is the HCF. That is the highest common factor. Clear? Easy है. क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क के लिए ट्राई करना, बिल्कुल सेम है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है? फाइंड HCF ऑफ 72, 108 and 180 by using prime factorization. Now first of all, do the prime factors of 72. 72 is divisible by 2. 2 into 36. Clear? Again 36 is divisible by 2. 18. Again 18 is divisible by 2. Clear? Now 9 is divisible by 3. 3 is divisible by 3. Clear? Now what are the prime factors of 108? 108 is divisible by 2. That is 54. Again 54 is divisible by 2. That is 27. Now 27 is divisible by 3. 9 is divisible by 3. 3 is divisible by 3. Clear? Now what are the prime factors of 180? 180 is divisible by 2. That is 90. Again by 2. 45. Now 45 is divisible by 3. Clear? 15 is again divisible by 3. So 5 ones are 5. Clear? अब देखिए, these are the prime factors of 72, 108 and 180. 72 के प्राइम फैक्टर क्या है आपके पास? 2 into 2 into 2 into 3 into 3. Now 108 के प्राइम फैक्टर्स क्या है आपके पास? 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Now 180 के प्राइम फैक्टर्स क्या है आपके पास? 2 into 2 into 3 into 3 into 5. Now you have to see the common factors in all the three. 2 is common in all the three. Clear? Now this 2 is again common in all the three. Clear? Now 2 pair of 3 common in all the three. So HCF आपके पास क्या आएगा? That is 2 into 2 into 3 into 3. क्लियर? इजी है. जो फैक्टर आपका कॉमन है आपको क्या करना, बस उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई. दैट विल बिकम 36. सो HCF ऑफ 72, 108 and 180 is 36. इजी है. क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. एंड क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 आप ओमिट कर देना. क्लियर? सभी क्वेश्चन सेम है बिल्कुल. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज find HCF of the numbers in each of the following using the division method. So this is the second method, that is by long division method. HCF by division method. ये मेथड भी बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको क्या निकालना है? HCF ऑफ 58 एंड 70. फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? यू हैव टू जस्ट डिवाइड द
लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। क्लियर? 58 वन जा 58। उसके बाद क्या करोगे, माइनस, जब आपने माइनस किया क्या आ रहा है 12। नाउ सेकंड स्टेप में जो आपका रिमाइंडर है, यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या है 12। सेकंड स्टेप में जो आपका रिमाइंडर था वो क्या बनेगा, डिवाइजर, एंड जो आपका प्रीवियस डिवाइजर था दैट इज 58, अब वो क्या बनेगा, दैट इज डिविडेंड। क्लियर? जो भी आपका रिमाइंडर होगा नेक्स्ट स्टेप में किसका काम करेगा, डिवाइजर का, एंड जो प्रीवियस डिवाइजर है वो किसका काम करेगा, डिविडेंड। क्लियर? नाउ यू हैव टू डिवाइड 58 बाय 12। 12 फोर जा 48, और जब आपने माइनस किया क्या आ रहा है आपके पास 10। अगेन जो आपका रिमाइंडर है वो किसका काम करेगा, डिवाइजर का, एंड जो आपका प्रीवियस डिवाइजर है दैट इज 12, वो किसका काम करेगा, डिविडेंड। क्लियर? इजी है। नाउ डिवाइड 12 बाय 10। 10 वन जा 10। अगेन आपका रिमाइंडर क्या रहा, 2। क्लियर? अब रिमाइंडर आपका किसका काम करेगा, डिवाइजर का, एंड प्रीवियस डिवाइजर किसका काम करेगा, डिविडेंड। अब देखिए यू हैव टू डिवाइड 10 बाय 2। 2 5 जा 10। जब लास्ट में आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, जो आपका डिवाइजर होगा एट द लास्ट स्टेप दैट इज 2, सो HCF इज 2। क्लियर? HCF is just the divisor of the last step. So HCF of 58 and 70 is 2. ये भी मेथड बहुत इजी है, बस आपको हमेशा क्या देखना है, जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो नेक्स्ट स्टेप में किसका काम करेगा, डिवाइजर का, एंड जो आपका प्रीवियस डिवाइजर है वो किसका काम करेगा, डिविडेंड। दैट विल बिकम डिविडेंड। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th इज 399 and 437. You have to find HCF by long division method. Firstly क्या करो आप, divide larger number by the smaller number. Clear? 399 वन जा 399। जब आप माइनस करोगे आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज 38। नाउ 38 इज द रिमाइंडर, बट नेक्स्ट स्टेप में 38 किसका काम करेगा, दैट इज डिवाइजर, एंड जो आपका प्रीवियस डिवाइजर है दैट विल बिकम डिविडेंड, दैट इज 399। इजी है। नाउ 38 इंटू 10 दैट इज 380। जब आप माइनस करोगे आपके पास क्या आ रहा है 19। अगेन रिमाइंडर इज 19, बट इस स्टेप में अब 19 किसका काम करेगा, दैट इज डिवाइजर, एंड प्रीवियस डिवाइजर किसका काम करेगा, दैट इज डिविडेंड। सो 19 2 जा 38, so here remainder is 0। सो रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 0, सो आपका HCF क्या होगा, दैट इज 90। जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपका HCF क्या होगा, दैट इज द डिवाइजर। सो HCF ऑफ 399 एंड 437 इज 19। क्लियर? इजी है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12th। Question number 12th is find HCF of 1045 and 1520. Firstly, you have to divide large number by the smaller number. 1045 वन जा 1045। जब आप माइनस करोगे क्या है आपके पास 475। So in this step 475 will become the divisor and 1045 will become the dividend. Clear? Easy है। Now 475 into 2 that is 950। Again subtract करने पे क्या आ रहा है आपके पास 95। रिमाइंडर इज 95, बट नेक्स्ट स्टेप के लिए 95 आपका क्या होगा, डिवाइजर, एंड 475 इज डिविडेंड। क्लियर? सो 95 into 5 that is 475। now remainder is 0, so HCF of 1045 and 1520 is 95। clear?
13th एंड क्वेश्चन नंबर 14th आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15th. Question number 15th is find HCF of 658, 940 and 1128 by long division method. Now there are three numbers. तो इसमें आप HCF कैसे निकालोगे? Now firstly choose two numbers. Now I am choosing first two numbers. मैं क्या करूंगा? इन दो numbers का क्या निकालूंगा? HCF. Now divide larger number by the smaller number. इजी है. जो इन दोनों का HCF आएगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? वो HCF एंड थर्ड नंबर दोनों का क्या निकालूंगा? HCF. इजी है. नो 658 into 1 that is 658. नो जब आप माइनस करोगे आपके पास क्या आ रहा है? दैट इज 282. Now 282 is the remainder, but in this step 282 will become the divisor and 658 will become the dividend. मीन जो आपका प्रीवियस डिवाइजर है वो किसका काम करेगा? डिविडेंड इन द नेक्स्ट स्टेप. क्लियर? सो 282 into 2 that is 564. और जब आप अगेन माइनस करोगे आपके पास क्या आ रहा है? दैट इज 94. Now 94 will become the divisor and 282 will become the dividend. So 94 into 3 that is 282. Now remainder is 0. So HCF of 658 and 940 is 94. But आपको क्या निकालना है? HCF of 3 numbers. दो नंबर्स का HCF आपके पास क्या आ रहा है? दैट इज 94. नो अब आपको क्या निकालना होगा? 94 एंड 1128 का HCF. नाउ सी now we have to find HCF of 94 and third number that is 1128. Clear? Now see, divide larger number by the smaller number. Now अगर मैं 94 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं that will become 940. Clear? So let's try 94 into 12. That will become 1128. Again remainder is 0. So आपका HCF अब क्या होगा? That is the divisor. और यहाँ पे divisor आपका क्या है? That is 94. So HCF of 658, 940 and 1128 is 94. इजी है. जब आपको 3 नंबर्स गिवन हो पहले आप क्या करो? दो नंबर्स को चूज करो, उनका क्या निकाल लो? HCF. और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका HCF है एंड द थर्ड नंबर उन दोनों का क्या निकाल दो? कॉमन HCF. क्लियर? नो रेस्ट क्वेश्चंस आप ओमिट कर देना. दैट इज क्वेश्चन नंबर 16th, question number 17th, question number 18th omit because all questions are same. Now see question number 19th. Question number 19th is show that following pairs are co-primes. Now what do you mean by co-primes? Two numbers are said to be co-prime if they do not have any common factor other than 1. Clear? Two numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1. Means दोनों नंबर्स का HCF क्या आना चाहिए? 1. क्लियर? नाउ 19th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? 59 एंड 97.
आपको क्या प्रूव करना है, शो डेट दीज आर को प्राइम्स। क्लियर। नो 59 के फैक्टर्स आपके पास क्या है, दैट इज 59 इंटू 1। क्लियर। एंड 97 के फैक्टर्स आपके पास क्या है, दैट इज 97 इंटू 1, बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर्स। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देयर इज ओनली सिंगल फैक्टर दैट इज 1। सो HCF is 1, so numbers are co-prime. Co-primes means number has no common factor other than 1. So here is common factor 1. Or you say HCF of 59 and 97 is 1. So numbers are co-prime. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20th आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 20th इज फॉर होमवर्क। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21st। नंबर्स क्या गिवन आपको, 343 एंड 432। आपको क्या प्रूव करना है, शो डेट दीज नंबर्स आर कोप्राइम, मींस हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343। अब किसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज बाय प्राइम फैक्टर्स एंड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मींस आपको क्या प्रूव करना है, दोनों का HCF क्या है, 1। Two numbers are co-prime if HCF of both the number is 1. Now 343 is divisible by 7. That is 49. Now 49 is again divisible by 7. Now 7 is divisible by 7. Clear? Now what are the factors of 432? Now this number is divisible by 2. That is 216. Again 216 is divisible by 2. That is 108. Again 108 is divisible by 2. Again this is divisible by 2. Now 27 is divisible by 3. Again 9 is divisible by 3 and 3 is divisible by 3. So these are the prime factors of 343 and 432. 7 into 7 into 7 and 432 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं आपके पास, दैट इज 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Now both the numbers have no common factor other than 1. इनको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, into 1 into 1. So there is only single factor common, that is 1. Two numbers are said to be co-prime if they have no common factor other than 1. Or you say HCF of both the number is 1. So numbers are co-prime. So numbers are co-prime. Clear? Easy है। क्वेश्चन नंबर 22nd, क्वेश्चन नंबर 22nd आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। एंड क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 आप ओमिट कर देना, आर द सेम। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25th is find the greatest number which divides 615 and 963, leaving the remainder 6 in each case. क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, आपको क्या निकालना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। लेट्स सपोज x is the greatest number which divides 615 and 963. क्वेश्चन को समझो, मींस आपको क्या बोलना चाह रहा वो, जब x ने 615 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज 6। क्लियर? एंड और जब 963 को x से डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, 6।
आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर। जहां पर भी आपको दिखे ग्रेटेस्ट नंबर मींस यू हैव टू फाइंड द HCF। क्लियर? ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963, लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। आपको क्या निकालना है, ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड करे। कंप्लीटली डिवाइड मींस आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, बट 6 नॉट इक्वल टू 0। इजी है। अब देखिए इसको आप सोल्व कैसे करोगे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके नंबर्स हैं उनमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, जो आपका रिमाइंडर है। मींस आपको क्या करना पड़ेगा, 615 माइनस 6 एंड 963 माइनस 6। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 25th, the greatest number which divides 615 माइनस 6। मीन्स आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर को नंबर में से सब्ट्रैक्ट, एंड 963 minus 6 exactly, that is the HCF of the number, is the HCF of। जब आप 615 में से 6 माइनस करोगे क्या बनेगा, 609। एंड जब आप 963 में से 6 माइनस करोगे क्या बनेगा, 957। मींस यू हैव टू फाइंड HCF of these numbers। Greatest number which divide 615 minus 6 and 963 minus 6 exactly, that is the HCF। now you have to find the HCF। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, that is the factorization method and by long division method। now divide larger number by the smaller number। now 609 into 1, that is 609। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ रहा है, 348। और सेकंड स्टेप में जो आपका रिमाइंडर है वो किसका काम करेगा, डिवाइजर। एंड जो आपका प्रीवियस डिवाइजर था वो किसका काम करेगा, दैट इज डिविडेंड। नाउ 348 into 1, that is 348। अगेन जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या, आपके पास 261। अगेन नेक्स्ट स्टेप में जो आपका रिमाइंडर है वो किसका काम करेगा, डिवाइजर का। एंड जो आपका प्रीवियस डिवाइजर है वो किसका काम करेगा, डिविडेंड। क्लियर? नाउ 261 into 1, that is 261। जब आप माइनस करोगे क्या रहा है, 87। अगेन अब 87 किसका काम करेगा, दैट इज डिवाइजर। एंड जो आपका प्रीवियस डिवाइजर है वो किसका काम करेगा, दैट इज डिविडेंड। नाउ 87 into 3, that is 261। here remainder is 0, so HCF of both the number is 87। so 87 is the greatest number which divides 609 and 957 exactly। इजी है। मीन जो भी आपको रिमाइंडर गिवन होगा आपको क्या करना होगा, नंबर में से रिमाइंडर को माइनस, एंड देन वी हैव टू फाइंड द HCF। जहां पे भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो, दैट इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर मींस यू हैव टू फाइंड द HCF। और जो आपको रिमाइंडर गिवन होगा आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर में से रिमाइंडर को माइनस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 सेम एज क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 25। सो प्लीज आप इसको होमवर्क के लिए ट्राई करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide। now again greatest number means you have to find the HCF। clear? that will divide 445, 572 and 699। इसके बाद देखिए लिविंग रिमाइंडर्स 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। मींस अब आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर्स में से रिमाइंडर्स को माइनस। तो आपके पास नंबर्स अब क्या बनेंगे, ये देखिए क्वेश्चन 22, that is 445 minus 4,
दैट विल बिकम 441. सेकंड नंबर क्या गिवन था 572, लीव्स रिमाइंडर 5, मींस आपको सेकंड नंबर में से क्या माइनस करना है 5, दैट विल बिकम 567. क्लियर. एंड थर्ड नंबर में क्या गिवन था आपको 696, लीव्स रिमाइंडर 6, दैट विल बिकम 693 रिस्पेक्टिवली. मींस 4 किसका रिमाइंडर है दैट इज 445. क्लियर. एंड 5 572 एंड 6 699. इजी है. अब देखिए नाउ यू हैव टू फाइंड द HCF of 441, 567 and 693. Now you have to find the HCF of 3 numbers. और आप कैसे निकालोगे? Taking 2 at a time. अब मैं किन दो का पहले HCF निकाल रहा हूं, that is 441 and 567. फर्स्टली अब किन दो का HCF निकाल रहे हो, that is 441 and 567. Now see, divide larger number by the smaller number. Now जब आप माइनस करोगे क्या यार आपके पास 126. क्लियर. नो जो आपका रिमाइंडर है वो किसका काम करेगा अब, डिवाइजर. एंड जो आपका प्रीवियस डिवाइजर था वो किसका काम करेगा, डिविडेंड. नो 126 into 3 that is 378. और जब आप माइनस करोगे क्या बनेगा 63. नो 63 will become the divisor and 126 will become the dividend. Now 63 into 2 that is 126. So remainder is 0. So HCF of 441 and 567 आपके पास क्या आ रहा है 63. क्लियर. अब आपको क्या करना होगा 63 एंड जो आपको थर्ड नंबर गिवन था उन दोनों का क्या निकालना है HCF. नाउ find HCF of 63 and 693. Now see 693 डिवाइड आपको किससे करना है 63. नो अगर मैं 63 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं क्या बन रहा है दैट इज 630. सो 63 इंटू आपको क्या देखना पड़ेगा एक बड़ा नंबर दैट इज 63 इंटू 11 दैट विल बिकम 693. सो रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है 0. सो जो आपका डिवाइजर है दैट इज द HCF. नो HCF ऑफ 441, 567 and 693 is 63. Clear. Now see question number 28. Question number 28 is reduce each of the following fractions to the lowest form. Now what do you mean by lowest form? Reduce to lowest term. फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है 161 by 207. लोवेस्ट टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 161 and 207. मीन्स यू हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द HCF. मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज बाय देयर HCF. Now you have to find the HCF of 161 and 207. Divide larger number by the smaller number. So 161 जब आपने subtract किया क्या रहा 46. Now 46 will become the divisor and 161 will become the dividend. So 46 into 3 that is 138. जब आप माइनस करोगे क्या रहा आपके पास, that is 23. Now again 23 will become the divisor and जो आपका previous divisor था वो किसका काम करेगा, that is dividend.
So 23 into 2 that is 46. So remainder आपका क्या आ रहा है? 0. So HCF of 161 and 207 is 23. लोवेस्ट फॉर्म में आप रिड्यूस कैसे करोगे? जब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे? बाय देयर एलसीएम. नो, 161 डिवाइड बाय HCF that is 23 and denominator में क्या था? that is 207 divide by 23. क्लियर? जब आप 161 को 23 से डिवाइड करोगे आपके पास क्या आएगा? that is 7. एंड जब आप 207 को 23 से डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ रहा है? 9. सो दिस इज द लोएस्ट टर्म. फिर इजी. अब नाउ सी सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या गिवन आपको? 517 बाई 799. आपको क्या करना? लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस. मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द HCF. नाउ फाइंड HCF ऑफ 799 and 517. Divide larger number by the smaller number. और जब आप माइनस करोगे आपके पास क्या आ रहा है? that is 282. Now 282 will become the divisor and 517 will become the dividend. So 282 into 1 that is 282. जब आप माइनस करोगे आपके पास क्या आ रहा है? that is 235. Again 235 will become the divisor and जो आपका previous divisor है किसका काम करेगा? that is dividend. So 235 into 1 that is 235. जब आप माइनस करोगे क्या आ रहा? 47. Again 47 will become the divisor and previous divisor था जो आपका वो क्या काम करेगा? that is dividend. So 47 into 5 that is 235. So रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है? 0. जिस स्टेप में रिमाइंडर आपका क्या है? 0, देन डिवाइजर ऑफ दैट स्टेप विल बी द HCF. सो HCF आपके पास क्या आ रहा है? दैट इज 47. सो लोवेस्ट टर्म में आप रिड्यूस कैसे करोगे? जब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे? दैट इज 47. सो 517 डिवाइड बाय 47 एंड डिनोमिनेटर इज 799 डिवाइड बाय 47. और डिवाइड करने पे आपका आंसर क्या आ रहा है? दैट इज 11/17 इज द लोवेस्ट टर्म. थर्ड पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. इज फॉर होमवर्क. एंड क्वेश्चन नंबर 29th टू क्वेश्चन नंबर 33rd अगेन आप क्या करना? ओमिट. एंड क्वेश्चन नंबर 34 इज फॉर होमवर्क. ओके क्लास, थैंक यू.